sometime, many a time you will be asked to present. Okay, ma'am. Okay, so for that, you will be requiring that. Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, good morning all. I think now good number of students have joined, but I'm again not satisfied with the attendance as now in your section you are 136 students. So at present, I'm able to observe that only 52, including me. Okay, so only 51 students are present in the class. So what is the reason behind? I do not know. But students, you need to remember this point, and also you please circulate this information in your group. Okay, that 75% attendance is must in the classes. Okay, let it be it is online platform. Someday you can have some issue, okay, but not all days. So try to attend these classes for the maximum time, because see, uh, for a time being, we are only having the medium of contact. Okay, so if you're not coming in the classes, there will be many doubts, there will be many confusion. Okay, maybe the topic will not be that much clear to you. So if you're coming in the classes, you will be helped a lot. Okay, so please attend the classes and try to increase your number of participation in the classes. That's the point I wanted to make at starting. Now, students, in the previous class, we were supposed to start, or I think we started slight discussion about types of communication. Am I right? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in that types of communication, we discussed that we have various categories of communication. Okay. So what are those various categories? We will have a brief look today about all of that. Some of the points we discussed in the previous class, but today, see, one thing I want from you people, that when I'm displaying the information in front of you, already it has been displayed, you take a clip of that. Okay, you take an image of that, because it will help you to later on understand the things or to memorize the topics. Okay, so please take an image of that or take a clip of that. That will be, and those who are having their classes from the laptop or the desktop, you can have the screenshot in the system itself. Okay, so I expect that all of you will note down this information. Now let us start with the discussion. I think the title, just a minute. Is Yes, this not now, audible? yes. Are you able to see? Yes, ma'am. Okay. And am Yes, I ma'am. audible? Am I audible also? You are able to listen me? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, fine, fine. Okay. So we need to discuss about various types, various categories, various forms of communication. Okay. We must have a brief information with us. That is only there in your syllabus. Okay. But I tried that at least you must be familiar with all existing terminologies. Okay, all existing categories of, or all existing forms of communication. Clear?
These all, see, categories, forms, kinds, types, okay, these are all same. Okay, it means what all available varieties are there in terms of communication, okay, that we have to know about. So just you can check here that at initial stage, okay, we have mentioned here these titles, okay. The first one is types, okay. In that types, we have to discuss what parties are involved, okay, what sides are involved in the process of communication. See, please remember students, we discussed about process of communication. In that we discussed we have two sides, okay, sender and receiver. Clear? We have two parties, sender and receiver. But in those parties also, if we have that uh, particular context that the sender is one human being and the receiver is also one human being, then what type of communication it will be? Okay, the sender are two and the receiver is one. Okay, for example, as you have taken admission in the university, okay, so if you have some work with the administration, so although the administration is a collective unit, one single unit, but many of the personnels are part of that, okay. So sender will be many. You see, time to time you are receiving many informations, okay, in terms of examination, in terms of registration, in terms of your classes, okay. So many people are working together, okay. So those are centers and you are one as a student, as an independent student, you are one, okay. So if the center are many, receiver is one, then what type of communication it will be? Both are human beings. Sometimes it happens that uh, sender is some human being, okay, and the receiver is some other being, okay. Then what type of communication it is? We have different context. So according to those different contexts, we have the categories of communication. Okay, I'll talk about all these things in detail. Now here, so this is about that what parties, okay, what beings are included in the process of communication. According to that, okay, we have subcategories. Now, the flow of communication, if you remember that we talked when we were discussing about organizational communication definition, okay, we talked about some directions of communication, okay. Those are the flow, okay, in which flow, in which direction the communication happens, okay. According to that direction also we can categorize communication, as you can see here, okay. These are the various categories. Clear? Now, according to the means, according to the manners, okay, again we have different type of communication, okay. Means matlab medium, हम क्या use कर रहे हैं, ठीक है, what we are using. Suppose I am using English language here and I am using the writing as well as the speaking medium, okay. So these are the means. Clear? So as per the means used, again we have subcategories of communication, or again we have various forms of communication, okay. And according to the manner of communication, again we have the categorization of communication, okay. So at basic level, as per the parties involved in the process of communication, as per the direction of the or the flow of the communication, or as per the means and the manners of communication, okay, we have the subcategorization, or we have the variety of communication, okay. So we will check one by one. So first let us check types, sorry, parties involved, okay. In communication, as per the parties involved, as per the beings involved, okay, what type of communication categories are there, okay. So you can check here, you can just see here: intrapersonal, interpersonal, mass communication, okay, and extrapersonal, okay. So we have to everywhere associate the term communication. So this is intrapersonal communication,
This is interpersonal communication. This is mass communication. This is extrapersonal communication. Ma'am, Okay. audio problem. Yes, what happened? ऑडियो प्रॉब्लम कैसे हुआ भाई? No, मैम ma'am, आपका it's वॉइस clear. कट हो रहा है एक्चुअली. मेरा वॉइस कट हो रहा है. आप में से कोई तो प्रॉब्लम नहीं कर रहे हो ना? अभी अभी क्या सिचुएशन है? मैम आपकी वॉइस क्लियर है, मे बी उसके साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम है. Maybe from my side only. Okay. Okay. Maybe from my side only. Yes, 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 yes. Okay. Now it's okay. Definitely. See, in Google Meets, okay, if we are having some issue of network, okay, then we can face problem regarding the audio and the video. Clear? So, and it is good. I appreciate that as you are facing some problem, you please inform. Clear? So, there will be. Ma'am. Yes? Ma'am, I just joined Yes, my what mobile as a camera. Okay. So shall I switch it on? Yes, yes, you can switch off and then you can rejoin. No, I Okay. just joined it. Means I just connected it as a camera, the mobile. Okay, okay. So are you able to see the screen? Are you able to see the information which is displayed? Yes, ma'am. Okay, then it is fine. Okay. So see here, as the parties or as the beings involved in the process of communication, okay, we have these categories of communication. In that we discussed all these 4 categories. So let us check what is intrapersonal. And students, please remember, आपका बहुत डिटेल में सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये टॉपिक, लेकिन हाँ आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. You should be able to understand and explain what it is. Okay, so that is there. So intrapersonal communication means that sometime a person thinks about something and moves on with many ideas. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने आप से बात कर रहे होते हो. अपने आप से बात करने का क्या मतलब है? You are thinking something and the very connected ideas or the very connected informations are coming to your mind. Okay, coming and going, and you are trying to come to a particular information. Okay, इस तरीके की सिचुएशन होती है ना, हम जब सोच रहे होते हैं किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए, कि मेरे को इसको ऐसे करना है, ये यूज करना है, ये मेरा प्रोसेस रहेगा, ठीक है, नहीं इसका ये, देन वी फर्दर थिंक ऑफ मेनी अदर थिंग्स. सो इफ दिस टाइप ऑफ मेंटल वर्किंग इज गोइंग ऑन, ओके, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. जब हम खुद से बात करते हैं, and if you people are interested in literature and if you have gone through this particular term, monologue, sorry, not monologue, yes, even monologue, and one more term I will mention here, that is soliloquy. आपने ये 2 terms किसी ने सुनी है क्या? किसी ने पढ़ी है लिटरेचर में? इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट, स्टोरीज, पोएम्स, ये सब आपने पढ़ा होगा 12th तक. हाँ, यस, क्विकली रिस्पॉन्ड, है ना? तो आप में से किसी स्टूडेंट को ये टर्मिनोलॉजीज पता है क्या? मोनोलॉग और सोलिलोक्वी. आर यू अवेयर ऑफ दिस टर्म्स? नो मैम. नहीं, ठीक है. अच्छा, ड्रामा किसी ने देखा है? मूवीज तो सब देखते हैं. यस मैम. मूवी सब देखते हैं ना, है ना? आपने देखी होगी. तो समटाइम यू ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द कैरेक्टर इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है, अकेले में अपने आप से बात कर रहा है, या सपोज पब्लिक में भी खड़ा है कोई कैरेक्टर, कोई पर्टिकुलर एक्टर, लेकिन वो कुछ अपने आप सोच रहा है, ठीक है, अपने आप ही सोच रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप से बातें कर रहा है. Isn't it? Have you ever observed this type of situation in the movies? Yes, ma'am. है ना? So Yes, that ma'am. is वो क्या है? वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है.
ठीक है, जब हम खुद से बात करते हैं या पर्सन खुद से बात करता है, ठीक है, या सोचने की एक्टिविटी करता है, और जिसके सीक्वेंस में मेनी ऑफ द थॉट्स come and go in the mind. Okay, they frequently come, the person is trying to some conclusion. Okay, so ये वाला ये कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, और ये कौन सा कम्युनिकेशन है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। आप ये नोट करो स्टूडेंट्स, when the person talks to himself or herself, okay, the person talks to himself or herself, okay, that is intrapersonal communication. यानी कोई एक्सटर्नल वो नहीं है, साइड एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टी तो दो है, सेंडर और रिसीवर है, लेकिन एक तो फिजिकल पर्सन है और एक उसने अपने ब्रेन को जैसे दूसरा एक पर्सन मान लिया है, ठीक है, एज्यूम कर लिया, इमेजिन कर लिया है, ठीक है, अपने सेल्फ से बात कर रहा है, ठीक है, सेल्फ से कोई डिस्कशन कर रहा है, क्लियर, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ कम टू दिस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एट प्रेजेंट वी आर in the process of interpersonal communication, as I am an individual and you people are individuals, okay, and we are having conversation, we are having discussion in form of this classroom. So we are doing what, or we are in a state of interpersonal communication, ठीक है। हमारे बीच में जहां दो फिजिकल बीइंग्स जो है, दो साइड जो है वो फिजिकली सेपरेट है, फिजिकली विजिबल है, ठीक है, फिजिकली उनका एग्जिस्टेंस है, ठीक है, तो इफ देयर इज सम कम्युनिकेशन among them or between them, then that is termed as interpersonal communication. ये समझ में आया आपको? ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेपरेट है साइड्स दोनों, और दोनों का सेंडर और रिसीवर जो है वो सेपरेट है, ठीक है, और उनका फिजिकल सेपरेट आइडेंटिटी है, ठीक है, और ये दोनों ही साइड में सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, या एक साइड में सिंगल पर्सन हो सकता है, दूसरे साइड में बहुत सारे पर्सन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके फाइन, ओके, सो यहाँ इंटर मतलब there is a separate party, there is a separate physically existing party. With that, if some communication is happening, then that is termed as what, interpersonal communication. Fine, now come to this mass communication. Okay, now mass communication, students, are you in habit of reading newspaper, or are you in habit of going through news on your mobiles and or through TV and all that? Yes, ma'am. हाँ, so that is example of mass communication, ठीक है। यानी वहां पे जो है, जो रिसीवर है, सेंडर और रिसीवर, अगेन डेफिनेटली इट इज इफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे भी सेंडर एंड रिसीवर होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ रिसीवर जो है, ठीक है, वो many नंबर होगा, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, मास कम्युनिकेशन। इवन इसको हम पब्लिक कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। पब्लिक कम्युनिकेशन में भी क्या होगा, रिसीवर साइड जो है वो it will be many number, participants will be many in number, ठीक है। it is a type of interpersonal communication, but here the specification is there that the receiver will definitely be in many number, ठीक है। अच्छा, जो बुक्स प्रिंट फॉर्म में अवेलेबल होती है, ठीक है, या इवन आजकल जो हमें इलेक्ट्रॉनिक बुक्स अवेलेबल हैं, वो भी मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, ठीक है। व्हाई? बिकॉज मास कैन एक्सेस दैट, ओके, मेनी पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कैन एक्सेस दैट, कैन यूज दैट, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, मास कम्युनिकेशन। मैगजीन्स जो है, ठीक है, मैगजीन्स जो है वो भी मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। व्हाई? because many people at a time can access that, can use that. Is this point clear? ठीक है,
मतलब ये डिफाइंड है। मास जो है वो यहाँ पे इंटरपर्सनल से थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ डिफाइंड है कि रिसीवर जो है इट विल बी मेनी इन नंबर, मे बी समटाइम इट इज काउंटेबल, समटाइम इट इज अनकाउंटेबल। जैसे पॉलिटिशियंस एड्रेस करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल कैंपेन्स में जो एड्रेसेस होते हैं पॉलिटिशियंस के, ठीक है, और अभी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अमेरिका में जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए प्रिपरेशंस चल रही हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंटशिप के लिए, ठीक है, दोज पीपल आर एड्रेसिंग द पब्लिक, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? मास कम्युनिकेशन का। यानी यस yes students, is there any problem? No ma'am, no. Okay, so are you able to understand this particular category of communication? mass communication मतलब जहां पे ज्यादा लोग होंगे, बहुत ज्यादा लोग होंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग कौन होंगे? रिसीवर साइड में, ठीक है। यानी कंपैरेटिव जो है सेंडर लेस नंबर होगा और रिसीवर जो है वो बहुत ज्यादा नंबर होगा। यानी सेंडर के कंपैरिजन, सेंडर के नंबर के कंपैरिजन में रिसीवर जो है वो बहुत ज्यादा नंबर होगा। दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? मास कम्युनिकेशन। वो मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम पीपल या मेनी या अ क्राउड कैन एक्सेस, ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? मास कम्युनिकेशन, ठीक है। Is this point clear? Yes. Yes, Yes ma'am. ma'am. Okay, fine. Now come to this particular category of communication, extra-personal communication. Okay, what is this? Extra-personal communication. See, how many of you keep pets? आप में से कोई पेट्स रखता है क्या? बताइए। हाँ। हाँ, Yes. तो आप Yes, कभी, ma'am. आपका कभी इंटरेक्ट करने का मन करता है क्या अपने पेट से? रोज हाँ? ही करते हैं। आप कभी इंटरेक्ट करते हो क्या? उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो क्या? हाँ, कम देते हियर, गो Yes, देयर, ma'am. हाँ, सिट लाइक दिस, ओके, बिहेव लाइक दिस, इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस हम हमारे पेट्स को देते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, है ना? इज इट राइट? Yes, ma'am. Right. डज दिस Yes, ma'am. हैपेंस? ये होता है क्या? Yes, ma'am. तो दैट इज एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, ओके। ये तो हुआ पेट्स का बात। कभी कभी हम जब छोटे थे, ठीक है, वी यूज्ड टू विजिट जू, ठीक है, या हम म्यूजियम जा रहे हैं, जू जा रहे हैं, ठीक है, या किसी नेचुरल सराउंडिंग वाले एरिया में हम जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो समटाइम नोइंगली और अननोइंगली इट हैपेंस, वी टॉक टू द ट्रीज, वी टॉक टू द फ्लावर्स, ओके, वी टॉक टू द अदर बीइंग्स व्हिच आर अवेलेबल इन दैट सराउंडिंग, ओके, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, इसमें वो पर्टिकुलर कैटेगरी इन्वॉल्व नहीं होगी, नॉन लिविंग नहीं होगा। अदर साइड रिसीवर जो है वो नॉन लिविंग नहीं होगा, इट विल बी लिविंग बीइंग, बट इट विल बी नॉट ह्यूमन बीइंग। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? प्लीज नोट डाउन दिस। ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा मे बी, लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो यू विल ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। एक्स्ट्रा पर्सनल मतलब एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के अलावा भी बहुत सारे लिविंग बीइंग है नेचर में। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? प्लांट्स जो है वो भी लिविंग बीइंग्स है, ठीक है। अदर एनिमल्स, Yes, ma'am. अदर जो एक्वेटिक जो एरिया है, ठीक है, वो भी लिविंग बीइंग है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के अलावा और जितने भी अदर लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग का और अदर लिविंग बीइंग का जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो हम पेट्स के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। जो हम अदर नेचुरल सराउंडिंग में वेजिटेशन के साथ, फ्लोरा फौना के साथ हम जो इंटरेक्शन या जो कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज व्हाट?
एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। और ये एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन आपको लिटरेचर में बहुत मिलेगा, मैम ठीक है। See, in literary descriptions, you may find that the poet or the narrator, as if is talking to some tree, as if talking to some animal, as if talking to some bird, as if talking to some, as if talking to sun, moon. इस टाइप के descriptions हम poems में, stories में पढ़ते हैं ना? Yes. yes ma'am. Come, हाँ? That is extra personal communication. Ma'am, I have a Yes. ma'am in Yes. in the extra personal communication, suppose हाँ. someone is means one human being are connecting with the non-living What creatures with or other other, being? Yes. but One what human if being. हाँ बताओ, बोलो। थोड़ा सा आप means माइक को अपने पास में रखो, माउथ के पास में रखो, ठीक है? देन वॉइस विल बी क्लियर। ma'am, what if is the means one non-living means an animal is as if a dog is talking with a dog, so that is also extra personal. That is also extra personal communication. Okay ma'am. Okay, that is also of the category extra personal communication. Fine. समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया Yes ना? ma'am. यानी एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में जो है वो अदर लिविंग बींग्स का इन्वॉल्वमेंट है। लिविंग बींग्स होने चाहिए लेकिन नॉन लिविंग नहीं, ठीक है? Yes ma'am. नॉन लिविंग नहीं। क्लियर? यस। एक साइड मतलब ये जो है वो एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स होने चाहिए, और इवन ह्यूमन बींग्स एक साइड में ही होंगे, दूसरा साइड जो है वो अदर बीइंग का होगा, तभी वो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है। नहीं तो इनमें से कोई एक होगा। इफ दोनों साइड ह्यूमन बीइंग है तो इनमें से कोई होगा, ठीक है? और इफ एक साइड जो है वो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और दूसरा साइड जो है अदर बीइंग है, अदर लिविंग बीइंग है, तो वो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होगा। इज इट राइट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? Yes, किसी ma'am. का भी कोई डाउट है तो अभी रेज करो आप। समझ में आया ना ये पॉइंट? मैम इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल ये दोनों में डिफरेंस क्या है? किसमें? इंटरपर्सनल और इंट्रा एंड इंट्रापर्सनल, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? इंट्रापर्सनल इज व्हेन वी टॉक टू आवरसेल्फ, when we think, that is intrapersonal communication example. Okay, when we think, it means we are talking to, we are having communication with ourselves, and we have imagined that our brain is one side and our other we can say other part is other side. Okay, यानी हम अपने आप को ही दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? ये इमेजिनेटिव है, ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये इमेजिनेटिव है। आप कई बार सोचते हो ना कि आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। जैसे आज सुबह आज आप उठे तो आप व्हेन यू गॉट अप, ओके, यू थॉट ऑफ कि मुझे क्लासेस लेनी है, बीच में मुझे ये काम भी करना है अपना, ठीक है, आज मेरा ये असाइनमेंट थोड़ा सा पेंडिंग है, इसको करना है। यू माइट बी थिंकिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स, मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग, यस है ना? मैम. तो दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. Yes. That is intrapersonal communication. Okay, and at present we are doing interpersonal communication. ठीक है? At present जो हम कर रहे हैं, ठीक है, as I am separate, हाँ, as I am separate side and you are separate side. I am teacher, you are students. Okay, so हमारा physical existence है, ठीक है, both side का हमारा independent physical existence है, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, वो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो, वो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। आप अपने किसी भी सोशल रिलेटिव से बात करते हो, वो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है? ये क्लियर हुआ? ये हो गया क्लियर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, यस मैम. ओके, फाइन. नाउ मास कम्युनिकेशन मतलब एक साइड जो है वो मेनी नंबर होगा. इट इज अ टाइप ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बट it differs in terms of numbers of participants.
ओके ये सिर्फ किस लेवल पे डिफर कर रहा है इंटरपर्सनल से? नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स से, यानी बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। अब वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी डिफाइन हो जाता है, ठीक है, कि वो बहुत सारा कितना नंबर होगा। इट कैन बी काउंटेबल, इट कैन बी अनकाउंटेबल। सपोज पॉलिटिकल कैंपेन्स में जो एड्रेसेस होते हैं, तो वहां पे पब्लिक जो है वो अनकाउंटेबल है, हम नहीं काउंट कर सकते कितनी पब्लिक है, जस्ट अप्रॉक्स आइडिया हम लगाते हैं, इजंट इट? हाँ, सो दैट इज Yes, मास ma'am. कम्युनिकेशन। और जैसे कोई बुक पब्लिश हुई है, ठीक है, तो वो बुक जो है वो मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। व्हाई? बिकॉज मेनी पीपल कैन एक्सेस दैट। बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो गूगल पे अवेलेबल है तो पढ़ सकते हैं, इजंट इट? यस मैम। और ये आपका गूगल पे जितना भी कंटेंट है वो मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। कैसे? बिकॉज मेनी पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कैन एक्सेस दैट, इजंट इट? यस, Yes, ma'am. all of you can. Yes, ma'am. Suppose you want to search, Yes, ma'am. suppose you are 55 at present, okay, all the 55 students want to search communication topic on Google, all of you can search in your own device. यस मैम। कर सकते हो ना? यस yes कर सकते हो ना? तो वो जो कंटेंट है वो वो ये जो आप कर सकते हो, ये जो एक्टिविटी है, ये मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। बिकॉज मास कैन एक्सेस दैट। मास मतलब मेनी इन नंबर, ठीक है। At a point of time can do the same thing, that is mass communication, clear? और एक्स्ट्रा पर्सनल मतलब one side will be other living being। ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि one side आउट ऑफ द टू साइड, सेंडर और रिसीवर में से एक साइड जो है वो अदर बीइंग होगा। अब सपोज ये देखो, आपको एक बहुत ही बड़ा कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। in night, okay, many time we observe that dogs are barking. डॉग्स बार्क Yes, कर ma'am. रहे हैं, या कोई एक पर्टिकुलर बर्ड जो है वो डे टाइम में जो है एक स्पेसिफिक टाइप से जो है वो वॉइस क्रिएट कर रहा है, हाँ, ठीक है। Yes, तो ma'am. वी ट्राई टू कम टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे डॉग बार्क कर रहा है, ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे डॉग्स ने एक साथ बार्किंग शुरू कर दी हमारे एरिया में, तो वी ऑटोमेटिकली बिकम अलर्ट कि क्या अलर्ट होते हैं हम, कि डेफिनेटली कोई स्ट्रेंजर आया है, ठीक है, या कौन आया है। तो क्या हुआ, ये हमारे और डॉग्स की बार्किंग के बीच में क्या हुआ, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन हुआ। यानी ये जो हमने ये हमने एक इंफॉर्मेशन डेवलप करी मेंटली, ठीक है, वो क्या है, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है, वो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का रिजल्ट है। आई बात समझ में? यस Yes, यस ma'am. मैम। हाँ। अब यहाँ पे आप इसको मिक्स मत करना, मैं इसी पॉइंट को एक बार और डिस्कस करूंगी आपसे जब मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्कस करूंगी, ठीक है, या यहीं पे बता दूं आपको। Many of us might have observed that we have watchmen in our colony, in our area, ठीक है, in our residential area, मतलब वो locality wise हम हमारे वॉचमैन होते हैं क्या? Have you ever observed this? Yes, है ना, ma'am. वॉचमैन Yes, होते ma'am. हैं, ठीक है। अब many a time you might have observed, okay, कई बार हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो हम भी लेट नाइट तक जग रहे होते हैं, ठीक है। सो वॉचमैन जो है वो अपने डंडे से ठक ठक करके आवाज, सपोज हमने ऑब्जर्व करी कि हाँ जो है वॉचमैन गया है, कैसे पता चला, उसने ही मतलब वो जागते रहो वाले वर्ड नहीं बोला उसने, बट ही जस्ट मतलब पुश्ड हिज दैट, उसने डंडा जो है वो अपना उसको थोड़ा सा पुश किया, ठीक है, तो उसे एक साउंड क्रिएट हुआ, द साउंड वाज देयर, ओके, एंड वी वर एबल टू जस्ट गेट एन इंफॉर्मेशन, ओके,
कि yes, watchman is moving around and he is asking people to be alert, okay, or he is just creating the situation of alert. तो वो extra personal communication नहीं है. क्यों नहीं है? Because watchman is also a human being, okay, he is the creator of that situation, okay, and we are also human being. वहां जो वो डंडे का साउंड यूज कर रहा है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, वो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. या एक और एग्जांपल आपको बताओ, आपके पेट को कभी भूख लगी है तो वो एक पर्टिकुलर पेट को भूख लगी है तो वो अपनी जो हंगर है, ठीक है, एपेटाइट है, उसको आपको आके रिफ्लेक्ट करेगा एक पर्टिकुलर मैनर में. वो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है. क्यों? बिकॉज अदर लिविंग बीइंग का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे, ठीक है. और नॉन वर्बल में जो मैंने आपको वॉचमैन का एग्जांपल दिया, जो उसका वो जो भी कर रहा है एक्टिविटी, ठीक है, बिकॉज वहां लिविंग अदर लिविंग बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग ही है. ही इज यूजिंग वन पर्टिकुलर अदर नॉन लिविंग थिंग, ओके, ऑब्जेक्ट, एंड क्रिएटिंग दिस साउंड. तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है. क्यों? बिकॉज अदर साइड भी ह्यूमन बीइंग है और इस साइड भी हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है. तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच में. डोंट गेट कंफ्यूज्ड for a certain situations that whether it is extra personal communication or non-verbal communication. We have to check who are the participants, who are the parties involved. Yes, students, is this point very clear to you? थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्ड करो भाई. Yes, आप ma'am. लोग तो कितने सारे हो नंबर में, कोई भी रिस्पॉन्ड कर सकता है क्विकली, ठीक है. ये समझ में आ गया सबको? So, Yes, ma'am. as per the parties Yes, involved, okay, as per the sides involvement, we have these 4 major types of communication: intrapersonal, interpersonal, mass communication, and extrapersonal communication. Okay, now let us check as per the direction, as per the flow of the communication. We have these 4 types, okay, vertical, horizontal, diagonal, and spiral. ओके, मैंने कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी यूज की थी, इफ यू रिमेम्बर. अपवर्ड, Yes, ma'am. डाउनवर्ड, Upward and downward. हाँ, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है. तो ये वर्टिकल को अगेन आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अपवर्ड और डाउनवर्ड में. वर्टिकल जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में या तो अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है, ठीक है. अपवर्ड मतलब Higher authority to us. हाँ, subordinates are transferring information to the higher authorities. That is upward. Okay, upward vertical direction communication. And suppose higher authorities are providing some information, that is to subordinates, that is downward direction communication. That is also happening vertically. ठीक है. अब जैसे ये जो मैंने इंफॉर्मेशन पूरा डिस्प्ले किया है, ठीक है, आप लोगों के लिए, तो मैं कौन सा कम्युनिकेशन, मेरी साइड से कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है. एंड इफ आई एम आस्किंग समथिंग एंड यू आर आंसरिंग, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Horizontal. Yes, ma'am. Suppose you are talking to your friends, you are asking something to your friends, how to do this, okay, that is horizontal communication. You are, अच्छा, फैमिली में आप यदि पेरेंट्स से बात कर रहे हो तो वो वर्टिकल होगा, ठीक है. लेकिन आप अपने ब्रदर सिस्टर से, आप अपने कजिन से बात कर रहे हो तो वो कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि सोशली वो आपका इक्वल स्टेटस है, ठीक है. सोशल स्पेस में वो इक्वल स्टेटस है, सो दैट विल बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है. कजिन्स का कैसा स्टेटस है, हॉरिजॉन्टल स्टेटस है, ठीक है. They all are considered at equal level. Okay, so that is that type of diagonal, cross. Okay, anyone can talk to anyone. That is diagonal. Spiral मतलब irregular. Spiral जो है वो irregular है,
ठीक है, इट इज स्लाइटली सिमिलर टू डायगोनल ओनली, क्लियर। लेकिन ये स्लाइटली इससे कैसे डिफर कर रहा है, इससे ऐसे डिफर कर रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड द वेरी सबऑर्डिनेट इज टॉकिंग टू द वेरी हायर अथॉरिटी, ठीक है। तो ये इफ ऐसा है स्ट्रेट, देयर इज अ स्ट्रेट, देयर इज नो मीडिएटर इन बिटवीन, तो वो तो क्या होगा, डायगोनल या क्रॉस, ठीक है। एंड सपोज द सबऑर्डिनेट, द मीडिएटर एंड द हायर अथॉरिटी इज देयर, देन दैट विल बी स्पाइरल, ठीक है। और इसमें जो है इफ हायरार्की फॉलो नहीं है, इसमें भी हायरार्की फॉलोड नहीं है, इसमें भी हायरार्की फॉलोड नहीं है, वो मीडिएटर कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट विल बी टर्म्ड एज स्पाइरल एंड दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डायगोनल। Ma'am, what is the difference between vertical and diagonal? वर्टिकल एंड डायगोनल, वर्टिकल तो हायरार्की फॉलो होगी, देखो वर्टिकल में हायरार्की इज मस्ट, ठीक है। वर्टिकल की जो सब कैटेगरीज है आप नोट करो, आप लिखो अपने पास में, वर्टिकल के नीचे लिखो आप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड में भी हायरार्की फॉलो होगी, डाउनवर्ड में भी हायरार्की फॉलो होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एज इट हैपेंस एट द पैरेलल लेवल, सो इसमें हायरार्की का कोई रोल नहीं है, ठीक है। बट यस, if certain formal steps are there to be followed, those will be followed, ठीक है। कोई steps हैं फॉर्मल प्लेस पे, फॉर्मल स्पेस के, तो वो फॉलो होंगे यहाँ पे भी, ठीक है। डायगोनल मतलब ना तो फॉर्मल स्टेप फॉलो होंगे, ठीक है, और ना हायरार्की फॉलो होगी। ये डायगोनल जो है अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे डिफर कर रहा है वर्टिकल से, that was a very good question by the student, okay, very nice। डायगोनल कैसे डिफर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हायरार्की फॉलो नहीं हो रही है, यानी फॉर्मल सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर, समझ में आया आपको? Yes, ma'am. है ना, डायगोनल में Ma'am, हायरार्की फॉलो नहीं है, स्पाइरल में भी हायरार्की फॉलो नहीं है, लेकिन डायगोनल और स्पाइरल में क्या डिफरेंस है, यहाँ मीडिएटर होगा, यहाँ एक मीडिएटर भी होगा, ठीक है। यहाँ कोई मीडिएटर नहीं है, only two sides will be there, two definite sides will be there, okay, but here there will be a mediator, ma'am, ठीक in है। diagonal, हाँ, ma'am, in diagonal yes, there should be means two people of different status or same status is also okay. yes, okay, it can happen with any type, okay, definitely two sides में हो सकता है जो equal status वाले हो, और different status वाले लोगों के बीच में भी हो सकता है ये, ठीक है, And fine, spiral also same. मैम इक्वल स्टेटस, yes, अगर इक्वल स्टेटस के हो गए तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आ नहीं, जाते हैं ना। हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में फॉर्मल स्टेप्स कंप्लीट करना जरूरी है, Yes, ma'am. ठीक है। इस तरीके से ये दोनों कैटेगरी जो है वो इन दोनों कैटेगरी से डिफरेंट है, ठीक है। ये दोनों थोड़ा सा इनफॉर्मल है, डायगोनल और स्पाइरल जो है वो इनफॉर्मल है, ठीक है, और ये टोटली फॉर्मल है। इस तरीके से ये डिफरेंट है दो चारों, आई बात समझ में? इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, कि एक्चुअली जहां चाहे पैरेलल लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है, बट सर्टेन फॉर्मेलिटीज आर फॉलोड, ओके, सर्टेन फॉर्मेलिटीज आर फॉलोड, देन दैट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बट हियर नो फॉर्मेलिटी इज फॉलोड, नो, वी कैन से नो फॉर्मल स्टेप्स आर फॉलोड, नो डेफिनेट मीडियम इज फॉलोड। सपोज मेरा मन है वो ही मीडियम में ऑप्ट कर लूंगी, मैं जो सजेस्टेड है उसको फॉलो नहीं करूंगी, सजेस्टेड जो फॉलो कर रहा है वो यहाँ है, वो ये टाइप है, ठीक है। जो सजेस्टेड फॉलो नहीं कर रहा स्ट्रिक्टली वो ये है और ये है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया? Yes, ma'am. ये स्टूडेंट्स अभी इज द पॉइंट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, ma'am. fine. So
as per the direction of the communication, okay, in a system or at a space, we can have these 4 types. Okay, इनके nomenclature different होंगे different books में. You may find different names for the same things. Okay, so you must be familiar with those. Now let us come to this point, that is the means and the manners, okay, used for the process of communication. Okay, that again provides a space of categorization or provides a space of varieties of communication. So इसमें आप देखिए linguistics, paralinguistics, ठीक है. हालांकि ये वाला जो पार्ट है पैरालिंग्विस्टिक, इसको हम जो है नॉन वर्बल कैटेगरी में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, और इसको लिंग्विस्टिक्स को हम वर्बल कैटेगरी में ही इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है. इवन द एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ नॉन वर्बल ओनली. सो if you do not want to remember these categories here, we can just go for verbal and non-verbal. 2 categories. As per the means and as per the manners of communication, we have 2 categories, verbal and non-verbal. ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी. ये जो 3 हैं, linguistics, paralinguistics, extra linguistics, okay, इनको हम जो है यहाँ पे इनमें से पैरालिंग्विस्टिक्स एंड एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक्स को हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं और लिंग्विस्टिक्स को हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, ओरल एंड रिटन के पहले. ठीक है, ये मैं अभी और भी आपको बता दूंगी और क्लियर कर दूंगी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर. सो वी विल जस्ट टेक दीज 2, ओके, वी विल डिस्कस ऑल दीज विद दीज ओनली. So verbal communication and non-verbal communication, this we have discussed earlier. Verbal communication means words will be used. Words will be used. Okay, either in written form or in oral form. ठीक है, words का use होगा. Clear? ये थोड़ा सा एरर हो गया मेरा, शायद डायग्राम में ही एरर हो गया है, प्लीज, है ना, प्लीज चेक दिस पॉइंट कि इसको हम ऐसे समझे कि इफ वर्ड्स आर यूज्ड देन इट इज वर्बल कम्युनिकेशन. दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ओके, सो नो नीड टू रिपीट much about that. If those words are in writing, it will be written communication. If those words are spoken, then it will be oral communication. At present we are doing both. If हम अभी क्लासरूम एक्टिविटी की बात करें तो हम ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन दोनों कर रहे हैं. इट मींस वी आर इन्वॉल्वड इन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, वी आर डूइंग वर्बल कम्युनिकेशन. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये थोड़ा सा मे बी मेरे एरोज में, डायग्राम्स में ही एरर हो गया. आई विल करेक्ट इट. ठीक है, ये समझ में आया क्या आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. हाँ. Yes, ma'am. Now come to non-verbal communication. Non-verbal का भी hint मैंने आपको दिया था, ठीक है. Non-verbal means no words. So if words are not there, then what else is there which will help us to communicate? Okay, if words are not used, so we as a human being, we find it difficult that how we will communicate without words, because maximum time we use language, we use linguistics. Okay, we use linguistics to communicate. Okay, but also communication happens without this. How it happens? For that, these are certain categories: kinesics, proxemics, chronemics, artifacts, haptics. Okay, ये डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में I'll explain you, ठीक है. And students, if you people are comfortable, we can have one extra class on Saturday. Whatever convenient time is there, you can inform me through message.
ओके आप आपस में डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। 1-1.5 घंटे का टाइम स्लॉट, फ्री स्लॉट जो है वो आप अपना डिसाइड कर लीजिए, ठीक है, मॉर्निंग आवर्स का। तो एक एक्स्ट्रा क्लास आई वांट टू टेक ऑन सैटरडे, बिकॉज ये अभी मैं as we are running short with the time, so I'll not be able to justify the explanation of all these. Okay, these are very important topics. ठीक है, आप लोग डिसाइड करके और मुझे बता दीजिएगा। अभी टुडे आई विल स्टॉप द डिस्कशन हियर इटसेल्फ। क्लियर? Okay, ma'am. And if you have any Thank you, question ma'am. related, yes, thank you. Okay, before leaving, just listen to my points, that please let me know one free slot of time of yours of Saturday. Okay, you people can आप लोगों ने क्लास रिप्रेजेंटेटिव वगैरह सब फॉर्म कर लिया है क्या अपने सेक्शन में? Is there any class representative of your section? कौन है आपके क्लास का CR? Not yet. Ma'am, no one. नो वन? No one. सभी CR हो आप लोग? हाँ इसका मतलब अभी कोई फॉर्मली असाइन नहीं है, इसका मतलब आप सभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, है? You are the representing section A, हाँ? Isn't it? Yes, ma'am. Yes, हाँ। ma'am. तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप 2-4 स्टूडेंट्स आपस में बात कर लीजिए, या मतलब इफ आप बात कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मल ग्रुप्स भी मत करना, जो आपके फॉर्मल जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन क्लासेस की रहती है वहां नहीं करना। आपस में आप बात करके एक मुझे टाइम स्लॉट आप 1-1.5 घंटे का बता दीजिए सैटरडे का, ठीक है। तो आई विल टेक 1 एक्स्ट्रा क्लास फॉर वहाँ यू पे पीपल। तो वैसे भी एडमिन ही भेज सकते। हाँ ठीक है, तो आप आपस में बात करके मुझे इन्फॉर्म करेंगे आप, ठीक है। And please mention that I am student of section A and ma'am this is the time slot we can have our class. ठीक है? ठीक है, ma'am. Okay, ma'am. हाँ, Okay, fine. ma'am. This is how you have to inform. And all of you need to attempt the class test for today. Clear? Already it has been assigned on your INCRP account. So please attempt that. And whatever topics we have discussed, those will only be part for your this first midterm exam for this HSM 101 paper. Okay? जो टॉपिक हमने कर लिए हैं और जितने लेवल तक हम कर रहे हैं उतना ही आपका मिड टर्म का सिलेबस है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया है। इफ यू वांट आई कैन रीसेंड इट, ठीक है। ओके, इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन लीव द क्लास। Thank you, ma'am. Okay, thank you all and have a good day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, thank you.